Hearty good morning to my all loving children. From your English textbook, Flight, turn the page number 3. Open your English textbook at page number 3. In page number 3, we have reading a patriotism. A short inspirational story by Ramendra Kumar. Ramendra Kumar क्या है? Author है. Ramendra Kumar is an short story writer for our Indian children. He has translated, he has written more than 20 books so far, and his books have been translated into 7 foreign and 8 Indian languages. इस कहानी का विषय देशभक्ति है बच्चों. देशभक्ति, वास्तव में देशभक्ति देश के लिए जेल जाने या देश के लिए मरने से नहीं होती है. वो तो अपने देश के लिए पूर्ण समर्थन और सम्मान प्रदर्शित करने से होती है ना. सच्चा देशभक्त, जो सच्चे देशभक्त केवल युद्ध के मैदान में ही पैदा नहीं होते. सच्चे देशभक्त केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं पैदा होते, जीवन का युद्ध भी सच्चे देशभक्तों को पैदा करता है. इस कहानी में बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स. There are 4 characters in this story. Our first character is Grandpa. In this story, Nanaji. Second, Ajit, grandson of Nanaji. Naina, elder sister of Ajit and granddaughter of Nanaji. Akash. Akash, son of Nanaji and maternal uncle of Ajit and Naina. तो कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे. द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन. नानाजी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय अजीत. His elder sister Naina explains, patriotism means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru, or die for country like Bhagat Singh. Nanaji agreed with Naina, but he told them patriotism means a lot more. He explained, patriotism does not only mean that one dies for the love of one's country. Patriotism का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अगर अपने देश को प्यार करता है और वो देश के लिए मर जाता है. Even standing up or hearing the national anthem being played or sung is a mark of respect to the country. आप जब राष्ट्रगान स्टार्ट होता है और आप खड़े हो जाते हैं तो ये भी क्या है? यू आर रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टेड मतलब एक्सप्रेसिंग. यू आर रिफ्लेक्टिंग योर पैट्रियोटिज्म. एंड पैट्रियोटिज्म कुड बी शोन थ्रू स्मॉल वेज इन डेली लाइफ. इट मीन्स वन रेस्पेक्ट इट्स लैंग्वेज, इट्स कल्चर, नेशनल सिंबल्स, सॉन्ग्स एंड ओवरऑल हिज लव फॉर फेलो कंट्रीमैन. मतलब अगर आप अपने देशवासियों को भी प्यार करते हैं तो भी आप अपने पैट्रियोटिज्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. क्या है? गांधी जी, चाचा नेहरू, मार्टर मतलब देशभक्त. हाँ, आप देखते हैं जब पहले सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम प्ले किया जाता था, बजाया जाता था, तो लोग क्या करते थे? मिडवे में ही शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, क्रिएटिंग अ रैकेट. रैकेट बच्चों, रैकेट का मतलब क्या होता है? एक अनप्लेजेंट, लाउड, कंटिन्यूअस नॉइज, कोलाहल, शोर. लेकिन रैकेट का एक और मतलब होता है, आप लोग बता सकते हो? रैकेट एक ऑब्जेक्ट है फॉर हिटिंग द ऑब्जेक्ट इन स्पोर्ट्स, वही टेनिस रैकेट. तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं. टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म with an example, Nanaji and children travel to a Himapad. What is Himapad बच्चों? It is the name of village. A small village about 100 kilometers away from their hometown. 2.5 hours later, they found themselves in a tiny, dusty railway station. A large, well-built man greeted them, अभिवादन किया with folded hands. He led them to a bullock cart which trundled on, moved slowly, which trundled on for almost an hour.
धीरे धीरे ही चलती है। 1 घंटे के बाद गांव पहुंचे। फाइनली दे रीच द विलेज। दे गॉट डाउन इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस। They got down in front of a large brick house. They were greeted by an elderly man and elderly woman who fussing over the kids. What is the meaning of fussing over the kids? Fussing over the kids मतलब ज्यादा अटेंशन देना किसी को। घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके बच्चों को ज्यादा अटेंशन देते हैं, तो paying too much attention to somebody. Later on, Nanaji took Naina and Ajit to a peepal tree, large peepal tree that had a platform around it. They sat down there and Nanaji started his story. So once again, children, I welcome back to a lesson patriotism and a story from Nanaji. कहानी अब शुरू होती है बच्चों। There was a young man whose name was Akash. आकाश बड़ा जिद्दी था, adamant, है ना? एडमेंट मतलब वेरी श्योर, जिसकी हम निर्णय को हम बदल नहीं सकते, है ना? जो अपना निर्णय नहीं बदल सकता, जो इच्छुक नहीं होता अपना निर्णय बदलने को। तो there was a young man whose name was Akash, who was very adamant, and after completing his MBBS from India, along with him 10 of his friends had also go to America for higher study. आकाश के 10 और साथी उसके साथ अमेरिका जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। His father wanted him to continue there and take his parents and sister there too. उसके पापा चाहते थे कि आकाश वहाँ सेटल हो जाए और अंत में अपने माता पिता और अपनी बहन को भी वहाँ सेटल होने के लिए बुलाए। आकाश के क्योंकि फ्रेंड्स अमेरिका में ही ठहर जाते हैं। Unlike his friends, आकाश returned India and after completing his studies, saying that he owed it to his country. वो उसने कहा कि देश ने जो उसके लिए किया वो देश के लिए वही करना चाहता है। फिर देश ने उसको उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की, जिसे वो एक कर्ज समझता था और वो उस कर्ज को चुकाना चाहता था अपने देश के लिए सेवा करके, अपने देशवासियों की सेवा करके, क्योंकि इंडिया जैसे देशों में वो सोचता था कि अच्छे डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत है अमेरिका के कंपेयर में। Akash joined a government hospital and worked there for a year. When an epidemic like corona pandemic struck, Akash left out to serve the villagers. He went there without informing his parents. वो गांव में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए जाता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करता, बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि दे would not let him to go there, वो उसको अनुमति नहीं देंगे। But after some time he sent his parents a message about the bad condition of a village. अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है गांव की बैड कंडीशन के बारे में, but he didn't mention where exactly he was. After some time, but unfortunately children, Akash fell sick and Akash's father received a phone about the grim मतलब serious, unpleasant, serious condition of Akash. As soon as they received the phone and they reached the hospital, and his parents asked him why he had been torturing himself, but Akash told them, torturing मतलब act of causing a great physical or mental pain, पीड़ा देना, तकलीफ देना किसी को, है ना? वो उसको वहाँ से स्पेयर मतलब टू स्टॉप फ्रॉम हैविंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो चाहते थे आकाश को वहाँ से वो ले जाए, वो बट वो उसको कन्विंस नहीं कर पाते। कन्विंस मतलब किसी को मनाना, है ना? आकाश क्योंकि उनको कहता है बच्चों कि वो आकाश ऐसा, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था और वो कहता है कि I can't watch people dying around and not to do anything। बहुत अच्छा बच्चों को वहाँ पर आकाश के द्वारा ये बोला हुआ जो डायलॉग है, I can't watch people dying all around me and not to do anything, ये होता है सच्चा देशभक्त, है ना? वो कहता है कि उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो हम करना चाहते हैं और वही हमें हासिल हो गया तो जो खुशी मिलती है उसी को सेटिस्फैक्शन कहते हैं। Soon after a month, Akash died in his mother's arms. Entire village, पूरा गांव
attended his cremation, and the villagers raised funds to build a hospital as homage to Dr. Akash. One of the local MLA gave them hefty amount. Hefty मतलब a large amount of money. एक स्थानीय विधायक उन्हें बहुत बड़ी राशि देता है डोनेशन में, लेकिन वो चाहता है कि हॉस्पिटल का नाम उसके नाम पर रखा जाए, बट गांव वाले उसको कन्विंस कर लेते हैं कि हम आकाश, इस हॉस्पिटल का नाम क्या रखेंगे, आकाश के ही नाम पर रखेंगे। द हॉस्पिटल वॉज नेम्ड डॉक्टर आकाश। क्या होता है, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी होता है, तो वो गांव वाले उसका इनॉग्रेशन मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना फॉर्मल मैनर में, तो वो लोग इनॉग्रेशन उसके पेरेंट्स से ही करवाते हैं, है ना। तो आकाश डाइड इन हिज मदर्स होम। ये बहुत बच्चों को भाव विकल कर देती है ये वाली सिचुएशंस, है ना। एंड लेटर ऑन नानाजी टुक नैना एंड अजीत टू सी द हॉस्पिटल। What was the name of hospital? Akash Memorial Hospital. Naina saw the name of Dr. Akash Rai, and as soon as she saw the name of Dr. Akash Rai, knowing that Nanaji's surname was also Rai, she asked Nanaji, who confirmed that Dr. Akash was his own son. क्योंकि नैना जानती थी कि नानाजी का भी सरनेम रॉय था, है ना। तो नानाजी भी कंफर्म करते हैं कि आकाश उनका ही बेटा है। तो क्या चिल्ड्रन मुझे बता सकते हो कि आकाश बच्चों के कौन लगते हैं? Can you tell me how did Akash relate to the children? Akash was their own uncle, maternal uncle, Mama ji. Naina and Ajit came to know that Akash was a dedicated doctor. He was willing to sacrifice to serve others. He was willing to sacrifice his life to serve others, and he was not interested in wealth or fame for himself. उसको अच्छा लगता था कि वो अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए बलिदान करे। वो अपने लिए कोई प्रसिद्धि नहीं चाहता था, ऐसा डॉक्टर था वो आकाश। एंड नानाजी who was a philosopher of professor of philosophy, है ना। नानाजी कौन थे बच्चों? नानाजी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछते हैं। Nanaji, who was a professor of philosophy, accepted. Finally, at the end of the story, he accepted that his own son Akash, tried to make him understand the true essence of the word service and patriotism. नानाजी तो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, वो अंततः ये स्वीकार करते हैं कि उनके बेटे आकाश ने उन्हें शब्द सेवा और देशभक्ति वर्ड का शब्द का सच्चा तत्व यानी सही अर्थ समझाया। तो फाइनली नानाजी got success in trying to make the children understand the true meaning of the patriotism, जो कि बच्चे पैट्रियोटिज्म का आशय नहीं समझ पाते थे। पैट्रियोटिज्म का आशय समझाने के लिए ही नानाजी उन्हें ये रियल स्टोरी सुनाते हैं। ये जो स्टोरी है ये कोई डायनासोर्स, किंग और क्वींस के बारे में नहीं है, ये रियल लाइफ और रियल पीपल और लोगों की रियल प्रॉब्लम्स की स्टोरी है। बच्चों, हर स्टोरी का कुछ ना कुछ मॉरल होता है। आप बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपको भी कुछ मॉरल मिला होगा। क्या सीखा आपने? सच्ची देशभक्ति क्या है? आपने सच्ची देशभक्ति का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सच्ची देशभक्ति क्या है? क्या देश के लिए जेल जाना या देश के लिए मरना है क्या? नो। क्या है सच्ची देशभक्ति? हमें अपने देश की प्रथाओं, देश के राष्ट्र चिन्हों, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, सबका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चों, मैंने ट्राइड किया, आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इन वेरी सिंपल इंग्लिश, क्योंकि जनरली पीपल थिंक दैट आवर रूरल चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट I am very positive and I think that कि my rural children can understand English। मेरा विश्वास है कि मेरे गांव के बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप कोरोना काल में आप सबने जो क्लासेस, ये जो पढ़ाई की जो धारा है, पढ़ी तुम्हारे द्वार पोर्टल से लगातार जारी रही है।
उन्होंने इसको अपनी पढ़ाई को जारी कंटिन्यू रखा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ये जो मैंने अपनी एकदम सिंपल इंग्लिश में स्टोरी को एक्सप्लेन किया, आप उसको समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है चिल्ड्रन। हाँ, तो ये स्टोरी का ये फर्स्ट पार्ट था और इस स्टोरी के 3 पार्ट और हैं जिसमें मैं आपको ये स्टोरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी आपकी मदर टंग में। हाँ, आपकी मदर टंग में भी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे 3 पार्ट आपको और थोड़े ही दिनों में आपको 3 पार्ट और मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? पैट्रियोटिज्म, ये कहानी आकाश, है ना, एक सच्चे देशभक्त की थी जिसने अपनी देशभक्ति को कैसे दिखाया, अपने देश के लिए जान, अपनी देश के लिए अपनी जान को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया लोगों की सेवा में। है ना, लोगों की सेवा में उसने अपनी जान को नसावर कर दिया। तो जो साबित होता है कि देशभक्त सिर्फ क्या युद्ध के मैदान में पैदा होते हैं, साबित हो गया कि जीवन का जो संघर्ष है, जो जीवन का संघर्ष है, जो जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वो भी देशभक्त पैदा करती हैं। और देशभक्ति हम अपने दैनिक जीवन के जो छोटे छोटे कार्यकलाप है उनसे भी हम अपनी देशभक्ति को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आई थैंक यू चिल्ड्रन।